download this data from Kaggle and put this inside your notebook using pandas. Okay, guys, please ping me if you are able to see my screen. Okay, perfect. So I have pinged all of you data that you need to download from the Kaggle. So please do that. So today we are going to implement some of the linear regression models using particular data set. Okay. So I'm explaining you what you need to do. Okay. I went on to the Kaggle, bring in this insurance data set. This insurance data set is like the data from insurance company where they simply predict the insurance premium based on certain features like the age of a person, whether he smokes or not, what is his BMI. So there are a lot of parameters. So if you see, आपको एक फाइल मिलेगा वहां से उसे अनजिप कर लेना एंड देन यू कैन सिंपली लोड दिस इंश्योरेंस फाइल. इस फाइल के अंदर सारा डेटा है मेरा, ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा, everything is inside it. Once I load this data, I can see the shape of this data that it contains 1300 rows and 7 columns, in which one will be target and others will be features. So the columns that are available here are
एज है हमारे पास, जेंडर है उस बंदे का, बीएमआई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट ही हैज, whether he's smoker or not, and in which area this person live. So ultimately what we need to do, even before you implement any model, सबसे पहले जब आप ईडीए की बात करते हो या ग्राफिकल प्लॉटिंग्स वगैरह आप करते हो, तो आप ये देख सकते हो कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या स्मोकर या नॉन स्मोकर का कोई इम्पैक्ट है, क्या बीएमआई का या जेंडर का कोई इम्पैक्ट है मेरे हायर चार्जेस होने का या लोअर चार्जेस होने का. फॉर दैट यू कैन प्लॉट सर्टेन ग्राफ्स, मे बी अ लीनियर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, or a bar chart. Using that you can do all the EDA that we have discussed, like in the Seaborn or Matplotlib there are certain graphs. But once you are done with this EDA, that okay, there is how charges is being impacted by multiple features, now comes the feature engineering part where we have to clean our data. Okay, so ये जो डेटा है इसमें ट्रेन डेटा भी है, टेस्ट डेटा भी है, और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब आपके फीचर्स और टारगेट सब कुछ है. सो बिफोर आई डू एनी स्प्लिटिंग, आई विल नीड टू डू नल वैल्यू एनालिसिस, डुप्लीकेट एनालिसिस, वन हॉट एनकोडिंग, वैल्यू imputation. Here, so to start, I can simply describe my data and can see for all the numeric columns the count, mean, standard deviation, and minimum value, maximum value. So I can do. But to start with feature engineering, this is the most important part where what we are doing, we are just checking whether there is any null or not inside this data. So currently there is no null inside my data, but let's check the second step, which we did earlier also, whether there is any duplicate record or not. So when I say duplicated, I get yes, there is one record which is duplicate in this data which I took from Kaggle or from wherever. So there is this one record which is duplicate, so I have to drop this. But before dropping any duplicate, you definitely want to see that what is this value which is duplicate, right? You cannot blindly drop it. Okay, so what you can do is, ये जो क्वेरी हमने चलाई इंश्योरेंस डॉट डुप्लीकेटेड, इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, फॉल्स 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 फॉल्स, लेकिन किसी एक रिकॉर्ड में इसकी वैल्यू ट्रू होगी जो डुप्लीकेट होगा. तो अल्टीमेटली हमें पता है कि फिल्टरिंग कैसे की जाती है पैंडास डेटा फ्रेम पे, लाइक दिस. अंदर जो रिकॉर्ड ट्रू मुझे देंगे वो वाले रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे. इंश्योरेंस डेटा फ्रेम में मैंने फिल्टरिंग कर दी कि भाई कौन से रिकॉर्ड है जो डुप्लीकेटेड है. So ultimately I can see that record number 581 where age is this, gender is this, BMI is this, so this record is duplicate. But I want to further validate कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या नहीं. तो मैं यहाँ से कोई भी एक वैल्यू उठाता हूँ जैसे चार्जेस, और मैं एक और फिल्टर कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ अपने डेटा फ्रेम में कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड दो जिनके लिए चार्जेस की वैल्यू 1639 है. तो यू कैन सी दैट मेरे पास दो रिकॉर्ड आ गए विच अल्टीमेटली टेल मी कि हाँ डुप्लीकेट है. तो यहां हमने पहली वाली क्वेरी में ये पता करा कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड कौन सा है, तो ये मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड दे देता है. बट मैं ये देखना चाहता हूं कि सारे रिकॉर्ड एक बार प्रिंट कर दो मुझे जो डुप्लीकेट्स हैं. तो मैंने सीधा यहाँ से एक वैल्यू उठाई और उसका कंडीशन में डाल दिया यहाँ. दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द रिकॉर्ड्स, राइट? Print all those records from this data frame where charges value is, insurance premium value is 1639. So I can see that okay, there is a problem with this particular scenario. So I need to now drop this data. I can note it down that okay, this record was duplicate which I removed. Now simply I need to do this. Okay. So I can come here and I can say okay, duplicate. So I am now simply doing the duplicate. And after that, if I see the shape, earlier it was 1338, now it is 1337. So that means one record is removed. Features are still 6 features and 1 target, total 7 columns.
So if you see, earlier there was 1338 records. Now I have dropped one record. Okay, but now आपने null check कर लिया, duplicates भी handle कर लिए, then you have to, यहाँ पे missing element imputation हमें करना नहीं है. But next is one hot encoding, right? Whether we really need to do that or not. तो हमें पता है कि ये एक regression problem है, और regression problem में I should not have a categorical data. So if any categorical data is there, I need to convert it. तो I will simply say मुझे सारे data types बताओ, D types. So उसने मुझे सारे column के data type बताए. Integer I am fine. Object मतलब it is a string, so means this is converted. Float, it's integer, I am fine. It's like a floating number. So definitely I can see here that there are chances of doing one hot encoding. तो उसके लिए मैं पहले एक बार डेटा भी प्रिंट करके देख लेता हूँ. That yes, मेरे पास जेंडर वाले कॉलम में मेल फीमेल वैल्यूज हैं, स्मोकर है, yes no. तो नॉर्मली स्मोकर जो होते हैं उनके प्रीमियम ज्यादा होते हैं. इफ यू सी, स्मोकर का प्रीमियम यहाँ ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज टू पीपल. बट देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो डेफिनेटली, बिकॉज फॉर दिस पर्सन द प्रीमियम इज हाई, but definitely if you see, his age is also high, and with age the premium also increases, right? So there are a lot of factors which are deciding these values. It is not Sir, only one single. Sir, can you please scroll up to the duplicate thing that you when we remove the duplicates? I lost my connection over there. Yes. So I am saying कि जब भी आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होता है, मतलब ड्रॉप डुप्लीकेट जब करना होता है, उससे पहले देखना भी पड़ता है कि डेटा डुप्लीकेट है या नहीं. तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस डॉट डुप्लीकेटेड जो फंक्शन था जिससे ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, मैंने यहाँ पे अपना फिल्टर कंडीशन में पास कर दिया. किसी भी डेटा फ्रेम पे जब फिल्टर करना होता है तो बस ये कंडीशन यहाँ देनी होती है ना. तो उसने मुझे वो रिकॉर्ड दे दिया जो डुप्लीकेट है, और बस मैंने उसकी वैल्यू उठाई चार्जेस की यहाँ पे, और एक और फिल्टर कंडीशन डाल दी ये देखने के लिए कि टोटल ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जहां पर चार्जेस की वैल्यू 1639 है. तो ये 2 रिकॉर्ड मुझे मिल गए जिनमें ऐसे सारी की सारी एंट्रीज डुप्लीकेट है. तो आई नीड टू रिमूव दिस वन ऑफ दिस डुप्लीकेट वैल्यू. तो बस मैंने इतना किया, सिर्फ डुप्लीकेट आइडेंटिफाई किया एंड देन उसको ड्रॉप कर दिया. आफ्टर दैट आई एम लुकिंग इनटू माय डेटा and I'm just showing you some of the interpretations from this data that definitely the charges, premium charges are less for people who are non-smokers, but there are other people who are non-smoker but their premium are high because of the age factor. Age is a very important factor in determining the charges. Okay, but ultimately अब हम इसे वन हॉट एनकोडिंग करके ये जितने भी कैटेगोरिकल कॉलम है इनको न्यूमेरिकल कॉलम में कन्वर्ट करना है. So there are multiple ways. Either I can go with ordinal encoding. When I do ordinal encoding, I will get additional columns with the values 0 1 0 1 0 1 like that. But I am not going into ordinal encoding right now. The another approach is label encoding. I can do that also, and that will also result in the similar approach कि मेरे जो भी नया कॉलम बनेगा उसमें मतलब स्मोकर की जगह एक स्मोकर का नया कॉलम बनेगा जिसमें yes no को 0101 में एनकोड कर दिया जाएगा. बट आई एम नॉट डूइंग लेबल एनकोडिंग, आई एम नॉट डूइंग ऑर्डिनल एनकोडिंग, बट व्हाट आई एम डूइंग वन हॉट एनकोडिंग. ओके, हमें पता है वन हॉट एनकोडिंग क्या करती है. वी हैव डिस्कस अर्लियर, जेंडर के लिए फीमेल और मेल 2 वैल्यूज हैं, तो इस कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाएगा और 2 नए कॉलम बना दिए जाएंगे विच इज जेंडर अंडरस्कोर फीमेल एंड जेंडर अंडरस्कोर मेल, जिनमें वैल्यू 0101 होंगी. तो आई एम गोइंग अहेड विद वन हॉट एनकोडिंग, और उसके लिए भी मैंने अभी वन हॉट एनकोडर ना यूज करके सीधा गेट डमीज यूज कर लिया है. बिकॉज आई टोल्ड यू ईदर यू यूज pd.getDummies और यू यूज वन हॉट एनकोडर, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट. सो व्हाट आई डिड इज pd.getDummies on my data, and now if you see Rahul sir, एक question है. Yes. Hi, Prem. So let's say if could have been there is a 2 different data set, test and the training.
तो उस केस में हमें कॉन्केटिनेट करके दोनों डेटा सेट पे ये सारी चीजें, मतलब डमी भी हमें वहां पे बनाना होगा। यहाँ पे तो हमारे पास केवल एक ही डेटा सेट है। Absolutely. ओके, Whenever you have this train data separate, test data separate, so I राइट। told you the feature engineering done together. You should concatenate. और कई कई बार क्या होता है कि आपको फाइल नीचे जाती है कि 10 कॉलम एक फाइल में है और 15 कॉलम एक फाइल में है, तो आपको दोनों फाइल को ज्वाइन भी करना पड़ता है। राइट, बिकॉज क्योंकि मतलब जो अभी आपको अगर याद होगा, लास्ट मैंने आपको कुछ चीजें व्हाट्सअप करी थी, तो उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हो रही थी जब हम कॉन्कैटिनेट करने के बाद उसको सेपरेट करते हैं, सो एंड देन वी हाँ, यू नो लाइक फिट द मॉडल, तो वहाँ पे एक डायमेंशन का मेरे को एरर आता था। दैट्स मीन दैट लाइक देयर इज अ यू नो द कॉलम इज मिसिंग इन सम डेटा सेट, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया था। ओके विल सी दैट। बट द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा ही आपको अलग अलग दिया जाए जिसको आपको कंकैटिनेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि 2 फाइल दे दी, 5 कॉलम एक फाइल में है और 5 कॉलम दूसरी फाइल में है, तो आपको उन दोनों फाइल को मतलब वर्टिकली ज्वाइन करना पड़ता है। तो मर्ज फंक्शन होता है हमारे पास पैंडास में, मर्ज राइट, ज्वाइन फंक्शंस होते हैं, हमें यूज करने चाहिए। तो हमें ये सब अप्रोचेस पता होनी चाहिए। ओके, 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 बट जब ठीक आप है सारा डेटा ज्वाइन कर रहे हो उसके बाद ही आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी है। सर, श्योर नाउ नाउ इफ यू सी गेट डमीज करने के बाद मेरे पास जेंडर के 2 कॉलम बन गए जिसमें वही वैल्यूज 1010 इस तरह से हो गई, स्मोकर के कॉलम्स बन गए और रीजन्स के कॉलम बन गए मेरे पास। अब इससे मुझे ये पता लग सकता है कि कौन सा कॉलम है जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे प्रिडिक्शन में। अच्छा, एक और बात जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी कि वन हॉट एनकोडिंग में अगर आपके पास n कॉलम बन के आए हैं, -1 कॉलम ही चाहिए, आप एक कॉलम ड्रॉप कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास ये 2 कॉलम बने हैं तो मैं एक कॉलम हटा सकता हूँ, मेल वाला। ठीक है, सिमिलरली रीजन के लिए अगर 4 कॉलम बने हैं तो मैं इसमें से एक कॉलम हटा सकता हूँ और 3 ही कॉलम से काम मेरा चल जाएगा। राइट, दिस इज समथिंग यू शुड नो कि अननेसेसरली मैं क्यों 4 कॉलम के साथ काम करूं जब 3 कॉलम से मेरा काम चल सकता है, मैं एक कॉलम ड्रॉप कर सकता हूं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप कि मैंने अब सारा काम कर लिया। अगर आप देखोगे डेटा में ना तो कोई नल है, ब्लैंक है, डुप्लीकेट है, ना ही कोई कैटेगोरिकल डेटा है। दिस डेटा इज नाउ रेडी फॉर गोइंग इनटू द मशीन लर्निंग मॉडल। बट अब यहाँ देखोगे तो इसमें टारगेट वेरिएबल भी है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम वैल्यू इसमें है, वो मुझे इसमें से अब अलग करनी है बिकॉज अब मुझे फीचर्स अलग करने हैं, टारगेट अलग करना है। आई एम रेडी फॉर माई मॉडल। बट रिमेंबर एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जितनी भी डीडीए कर लो, फीचर इंजीनियरिंग कर लो, इवन बिफोर यू गो इनटू द मॉडल एक बार फाइनली चेक कर लो कि कहीं अभी कोई नल तो नहीं आ गया। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि आप मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन कर भी देते हो, उसके बाद भी किसी ना किसी कॉलम में नल रह जाता है, या फिर कुछ नए कॉलम आप बनाते हो तो नल रह जाता है। तो एक बार फाइनली ये क्वेरी चला लो फिर भी कि भाई कोई नल अभी रह तो नहीं गया मेरे डेटा में। तो इट इज सेइंग नहीं, अभी कोई नल नहीं रह गया है, यू आर गुड विद द डेटा दैट यू हैव, गो अहेड। दिस इज फॉर यू। सो नाउ आई नीड टू डू व्हाट, मुझे अब इसमें से फीचर्स अलग करने हैं, मतलब एक डेटा फ्रेम ऑफ एक्स बनाना है और एक डेटा फ्रेम ऑफ वाई, मतलब सिर्फ टारगेट बनाना है। तो ये अप्रोच तो सिंपल है कि मुझे चार्जेस कॉलम ड्रॉप करना है एक्सिस 1 पे से, तो बचे हुए सारे कॉलम जो है वो फीचर्स हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में मैंने कॉलम का नाम बता दिया, टारगेट कॉलम जो मुझे ड्रॉप करना है, और क्योंकि वो कॉलम है तो एक्सिस 1। सिमिलरली जो टारगेट डेटा फ्रेम है उसमें मैंने बोला कि इस डेटा फ्रेम में से, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक कॉलम मुझे चाहिए चार्जेस करके। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली मेरा सारा डेटा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। एक ये डेटा है जिसमें चार्जेस हट चुके हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम हट चुका है जो मुझे प्रेडिक्ट करना है, और ये सेकंड डेटा फ्रेम है जिसमें सिर्फ टारगेट्स हैं, कॉलम का नाम है चार्जेस, फ्लोटिंग टाइप का है, टोटल 1337 रिकॉर्ड जिसमें भी है। तो दैट मीन्स आई एम गुड टू गो अहेड एंड स्प्लिट माय डेटा। ये तो हमने डिसीजन ट्री या केएनएन में भी किया था कि सिंपल हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है, दैट्स इट।
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लेकिन फीचर्स अलग से चाहिए होते हैं और टारगेट अलग से चाहिए होते हैं, इसीलिए मैंने वो अभी ऊपर स्प्लिट किया, राइट। मेरे पास पूरा डेटा था, मैंने उसको 2 पार्ट्स में ऊपर स्प्लिट किया, फीचर्स में और टारगेट में, और ये मैंने टेस्ट साइज बताया कि भाई 80-20 के रेशो में डिवाइड करना है, रैंडम स्टेट 100, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, इसका मतलब जो स्प्लिट बनेगा वो सेम बनेगा, वरना मेरे मॉडल के स्कोर्स में डिफरेंस आ जाता है। इट इज लाइक सेट डॉट सीट, राइट। अब जब ये सारा काम हो गया, नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट दिस same approach from sklearn dot nearest neighbors you imported k nearest neighbor, from sklearn dot trees you imported decision tree, similarly from sklearn dot linear model you will import the linear regression. Okay, so there are multiple types of regressions, like I told you, ridge regression, lasso regression, we'll see that, but currently it is the linear regression. Please mute yourself guys. सर सर थोड़ा आप स्लो चल लो, हम भी साथ कोड कर रहे हैं तो कोड नहीं हो पा रहा है ऐसे ना। Okay, you want to code it, तो आप okay हाँ, साइड बाय साइड कोड कर रहे हैं तो और अच्छे से समझ आता है, तो अभी हो नहीं पा रहा वो। okay so आप लोगों ने डेटा रीड कर लिया है? परफेक्ट। मतलब ये सारी स्टेप्स जो भी हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग इसको ट्राई कर लो, मैं आपको पिंग कर रहा हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट वी आर डूइंग, यहाँ पर हमने कोई ग्राफिकल प्लॉटिंग नहीं की, बट वो आपके लिए है कि भाई अपना सीबॉर्न मैटप्लॉटलिब यूज करके इस पे प्लॉटिंग्स वगैरह करते रहो, और अगर आपको कुछ और भी ट्राई करना है आप कर सकते हो इसमें। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा अपना गेट डमीज से काम कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जब आप लोग कर लो तो लेट मी नो, और जब फाइनल आप कहते हो कि मैं रेडी हूँ अपना मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एक बार और चेक कर लो कि भाई नल नहीं है। क्योंकि वरना बाद में फिर बहुत प्रॉब्लम होती है अगर डेटा में नल्स रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभी पहुँच जाओ आप लोग, अपना आराम से डेटा स्प्लिट कर लो।
guys, so I'm moving ahead. So अभी हमारा data split हो गया. It's simple that now what we have to do, we have to implement the linear regression model. So I have just imported the linear regression class, created an object out of it. Object's name is regressor, and now using that object, I am just doing the fit process. Fit के लिए I know that I have to pass my training data x and y. So I am passing my x train and y train, and I am simply plotting it. Here the coefficients, this not much use except this parameter which is n jobs, which I told you that if you increase this, you can leverage more of your CPU threads or parallelism. Okay, so once we fitted the model, now the important thing for us is that linear equation. We have to just build this equation, which is like beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2. ओके, सो अल्टीमेटली जब हमने ये मॉडल फिट किया तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल पीछे चला, एंड सिमिलर जो हमने पिछली बार बात की थी OLS मॉडल में, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में, कि यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट प्रोसेस चला होगा जो ग्लोबल मिनिमा की तरफ गया होगा विया द प्रोसेस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, एंड समवेयर वो लोकल मिनिमा पे जाके रुका होगा. इंटरनली बहुत सारे आइटरेशंस चले होंगे इस ट्रेनिंग साइकिल में, और उसके बाद फाइनली मेरे पास ये कोफिशिएंट्स बन के आए होंगे. तो नाउ इस मॉडल के इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट, ये दो वैल्यूज हमें देखनी होती हैं. तो इंटरसेप्ट एंड कोफिशिएंट के फंक्शंस है. अगर मैं यहाँ प्लॉट करूं तो मेरे पास यहाँ इंटरसेप्ट वैल्यू आ रही है विच इज बीटा नॉट, एंड ये जो सारे हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, जितने भी कॉलम मैंने पास किए थे उन सब के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो फॉर ईच ऑफ द कॉलम आई एम गेटिंग दी कोफिशिएंट वैल्यू, वेयर आई कैन से कि जहां लेसर कोफिशिएंट है वो लेस इंपॉर्टेंट है. मतलब 23 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस 23 इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट बाकी ये 11,000 चाहे प्लस में हो या माइनस में हो दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्लस माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि वो पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा या नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा, बट उसका मैग्नीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट. तो हियर दिस इज द वे यू कैन build your linear equation. Just by putting those values here, you will generate a linear equation. So before we go ahead, I'll tell you this, that fitting these models is not that complex. It's just to see this parameters regression model के अंदर intercept और coefficient, ये दो important parameters हैं which gives you the details to create your equation. And if you simply use this train, जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो फीचर्स पास किए थे डॉट कॉलम्स, तो ये आपको सारे कॉलम का नाम उसी ऑर्डर में दे रहा है. मतलब ये ऑर्डर आपको पता कैसे लगेगा, तो ये उसी ऑर्डर में प्रिंट करके बता रहा है कि एज का, BMI का, चिल्ड्रन का इंपॉर्टेंस है, जेंडर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम प्रिडिक्ट करने में स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी, स्मोकिंग का बहुत ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे इम्पैक्ट होता है, और आप किस एरिया में रहते हो उसका भी कुछ हद तक इम्पैक्ट है यहाँ पे. 47, 209, 163. तो बट वट वी कैन डू, हम इसमें से कुछ फीचर्स ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, एंड वी कैन अगेन ट्राई इट. बट बिफोर दैट you just run this model and let me know कि आप यहाँ तक you got these values. राहुल सर, yes सर जब मैं ये रिग्रेशन मॉडल फिट कर रहा हूँ तो उसके बाद रिग्रेसर लिख रहा हूँ मॉडल का नाम, तो उसके बाद जैसे आपके में पहले मेरे पास भी दिखाता था कि जुपिटर में कि ये सारे पैरामीटर्स लिखे आ जाते हैं, बट अब ऐसा नहीं हो रहा, पैरामीटर्स नहीं आ रहे, बस लिखा रहा लीनियर रिग्रेशन और फिर वो ब्रैकेट्स. is it happening only for this or it's happening for decision tree and all models? सर सबके लिए हो रहा है, डिसीजन ट्री के लिए भी हो रहा है, बाकी मॉडल्स चलाए तो उनके लिए भी हो रहा है. ओके, मुझे एक बार ग्रुप पे बस पिंग कर दो कि आपको क्या आ रहा है, और एक बार प्रिंट करके भी देख लेना कि पिंग कर दो एक बार क्या दिख रहा है आपको. ओके, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको वो भी कोई टेंशन नहीं है.
आप सीधा यहाँ पे रिग्रेसर लिखो, डॉट लिखो, टैब प्रेस करो, ये आपको सारी वैल्यूज दिखा देता है जो भी आपके काम की हैं। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट, इंटरसेप्ट, बस ये दो चीजें काम की हैं। इसके अलावा ये दो फंक्शन है, स्कोर और प्रिडिक्ट, ये फंक्शंस हम यूज करेंगे, प्रिडिक्ट फंक्शन और स्कोर फंक्शन। ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनका क्या रेलेवेंस है, बट अदर देन दैट यू नीड ओनली कोफिशिएंट एंड इंटरसेप्ट। मैंने sklearn दोबारा वो मतलब अपडेट किया था sklearn, उसके बाद से प्रॉब्लम आ रही है। Okay, that I will look later. So meanwhile, please guys, you are able to do this. Let me move ahead. कि अब हमने ये देख लिया कि linear regression is done. But important is we are able to create this equation. The very first step of any linear regression is to create the linear regression equation. But यहाँ सारे features consider किए गए हैं और आज हमें देखना है कि कैसे हम इन features को मतलब remove कर सकते हैं, which you will see. But before that हमें ये देखना है कि आखिर ये जो मॉडल बना इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। हमने एक बेसिक मॉडल इंप्लीमेंट कर दिया लीनियर रिग्रेशन का, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस मतलब दो चीजें, ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी। किसी भी मॉडल को जब भी आप काम करते हो पहले ट्रेनिंग एक्यूरेसी देखी जाती है, फिर टेस्ट एक्यूरेसी देखी जाती है, और उसके बेसिस पे ये पता लगाया जाता है कि मेरा मॉडल अंडर फिट है या ओवर फिट है। सबसे पहली स्टेप। ओके, तो मेरा ये मॉडल बन गया है। गेटिंग दिस वैल्यूज इज नथिंग बट योर मॉडल इज रेडी। So let's go to the next step where I am getting my training accuracy and test accuracy. So in this regression object जो मैंने बनाया, there is a score function. इस score function में मैं अपना x train y train पास करूंगा और मुझे मेरी accuracy मिल गई। ट्रेनिंग accuracy मतलब जिस डेटा पे मॉडल ट्रेन हुआ है वो डेटा कितना सही है और उस डेटा से मॉडल ने कितने हद तक नॉलेज एक्वायर कर ली है। ओके, लेकिन इसकी वैल्यू 75 है, which is quite good. Why I am saying good? Because at least 100 नहीं है, 100 होती तो डेफिनेटली ये मॉडल एक ओवरफिट मॉडल हो सकता था, क्योंकि ट्रेनिंग एक्यूरेसी का 100% होना इज अ फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ ओवरफिट। ओके, so at least I am saying that yes, this model is not overfit, but to conclude that we have to check the test accuracy. So for ये जो स्कोर निकल रहे हैं गाइस, ये R2 स्कोर्स ही हैं। ओके, R स्क्वायर्स। तो अब यहाँ पर ये जो स्कोर निकला, अब यहाँ मैं टेस्ट डेटा पास कर रहा हूँ, X part features of test data and target of test data. So using this data internally, it is telling me that आपकी test accuracy is this much. So that means model is bit good. Good in the sense कि overfit नहीं है और underfit भी नहीं है। Overfit कब होता जब ये 100 आती और ये 75 आती, तो वो overfit होता। मतलब कि मॉडल को जो ट्रेनिंग डेटा दिया गया था उसने उससे इतना ज्यादा सीख लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में आते ही वो फट गया, ओवरफिट होता है। ओवरफिट मतलब फिटिंग के टाइम पे वो ओवरफिट हो गया है, उसने पैटर्न्स को रट लिया है, उसने उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाली है। दैट इज फर्स्ट थिंग। अंडरफिट मैं कहता जब दोनों ही ऑलमोस्ट 40-50% एक्यूरेसी आ रही होती, ट्रेन एक्यूरेसी भी टेस्ट एक्यूरेसी भी। ओके, वहां मैं कह सकता था कि ये अंडरफिट है, बट यहाँ इट इज बेटर, बट मैं इसको और इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो पहले हमने ट्रेन एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी अपनी निकाल ली। इस एक्यूरेसी को यूज करके मैं इसे डिसीजन ट्री से भी कंपेयर कर सकता हूँ, KNN से भी कंपेयर कर सकता हूँ।
ओके, ये जो हमने स्कोर निकाला है, एक्यूरेसी स्कोर, इसको निकालने का एक दूसरा तरीका और है, मैं वो बताता हूँ। ये तो हमने डायरेक्ट स्कोर फंक्शन यूज कर लिया, बट दूसरा जो तरीका होता है जो हमने पिछली क्लासेस में किया था, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टेस्ट स्कोर है वो निकालने के लिए पहले हमें प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। पहले प्रिडिक्ट करो, ये लंबा वाला तरीका है, वो शॉर्टकट था, ये ज्यादा सही तरीका है। पहले आप प्रिडिक्ट करो कि भाई ये जो मेरा टेस्ट डेटा है इसमें मॉडल क्या प्रिडिक्शन देगा। ओके, जब आपने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है मॉडल की, फिर उन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, वही एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड गिव्स यू एरर, यूजिंग दैट you get RMSE MSC, राइट। तो हमारे पास sklearn के अंदर एक मैट्रिक्स नाम का सब पैकेज है जिसमें R2 स्कोर का फंक्शन होता है हमारे पास, वी सॉ इन द KNN एंड डिसीजन ट्री। यहाँ पर मैं अपना y टेस्ट और y प्रिडिक्ट, मतलब अब y टेस्ट क्या है, जो मेरा एक्चुअल डेटा था और ये जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, तो अल्टीमेटली उससे भी वही वैल्यू निकली है। अगर आप देखोगे ये जो मेरी ये टेस्ट एक्यूरेसी निकली है, बट इसके लिए मुझे बस एक लंबा क्रॉस करना पड़ा। इसको मैं ऊपर, पहले मुझे अपनी प्रिडिक्शन करनी पड़ी, प्रिडिक्टेड वैल्यूज को लेके मैंने यहाँ डाला और ये एक्चुअल वैल्यूज थी डेटा की, तो मैंने ये तरीका निकाला, बट जो वैल्यू निकली है ये सेम है जो ऊपर स्कोर मेथड से निकली थी। लेट मी send you all these, 1 second. I think till this point you all did it. Okay, so now आपको आगे पता लगाना है कि मेरा मॉडल ओवरफिट है, अंडरफिट है, आपको सही है। तो ट्रेन एक्यूरेसी निकालोगे आप, टेस्ट एक्यूरेसी निकालोगे आप, ठीक है। टेस्ट एक्यूरेसी निकालने का दूसरा तरीका मैं पिंग कर रहा हूं कि आप पहले प्रिडिक्ट करोगे, अभी अभी मेरी आवाज ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। तो ये आपको दूसरा तरीका है जस्ट टू गेट द एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी। ओके, तो एक बार ये चेक कर लो, बिकॉज आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, कोई स्टेप मुझे करना है नहीं करना, वो सब इन पे डिपेंड करती है कि मेरा मॉडल अंडर फिट है या ओवर फिट है। ओके, उसके लिए मुझे उसके एक्यूरेसी स्कोर्स निकालने होंगे। तो मेरे पास डायरेक्टली आर स्क्वायर्स के फॉर्मूले हैं जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। once you are done with this, just ping me. Guys, okay, I got only one ping till now. Okay, perfect.
तो अभी हमने ये देख लिया कि भाई देखो मॉडल मेरा बिल्ड हो गया है और उसकी इक्वेशन बिल्ड हो गई है, ओवरफिट अंडरफिट हमने चेक करा, हमने उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली. देन अनदर पॉइंट इज वी कैन चेक RMSE value also, which is the error value. Formulas are same. sklearn dot matrix मीन स्क्वायर्ड एरर निकालोगे और मीन स्क्वायर्ड एरर का आप स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपके पास RMSE आ जाएगा. यहाँ पे RMSE वैल्यू आ रही है विच इज 6 पॉइंट समथिंग. मैंने यहाँ जस्ट आपके नॉलेज के लिए रखा हुआ है कि KNN में मेरे पास 5 आई थी, डिसीजन ट्री में वैल्यू 4 आई थी, तो मतलब लीनियर रिग्रेशन में ज़्यादा ही आ रही है एरर उन सबसे कंपैरेटिवली. तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि मैं इस मॉडल को और इम्प्रूव कर सकूं. विल सी हाउ, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड मॉडल as compared to KNN or decision tree. Okay. So I'll just ping you. नहीं, यहाँ वैल्यू 5799 आ रही है. सॉरी, यहाँ ये कुछ और वैल्यूज हैं, प्लीज इग्नोर दीज. मुझे देखना पड़ेगा ये वैल्यूज क्या हैं. ये 6 वैल्यू क्या आई थी, ठीक है. ये शायद, अच्छा वो तो डेटा ही अलग था. दैट इज अ सेपरेट डेटा, दिस इज अ डिफरेंट डेटा. तो उस डेटा पे मैंने इंप्लीमेंट ही नहीं किया ये. तो दिस इज अ डिफरेंट डेटा, सो प्लीज डोंट कंपेयर दिस डेटा सेट्स. यू कैन सिंपली इग्नोर दिस. सो यहाँ हमारे पास RMSE आ रहा है 5799. तो वो जो वैल्यूज है, इग्नोर दोज वैल्यूज. So RMSE value is this. Okay. So once I have this errors, accuracies and all, my partial work is like done. But now there is another thing, that p value, right? How to check the p value in the case of linear regression, right? So sklearn does not provide you any direct way of identifying the p values, like which feature is important or not. मुझे बस ये पता है यहाँ एक अपने कोफिशिएंट देख के मैं बस पता लगा सकता हूँ कि कौन सा कोफिशिएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन सा कम लग रहा है, बाय लुकिंग एट इट्स मैग्नीट्यूड. तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, like how can I see the p value for each of these? Then you have to go back to the original approach which we did in one of the initial class, which is stats model. So you have to use this stats model.api sm. You will use the OLS method, is ordinary least square. You will pass the y train and x train. Okay, so you have to pass these values, and simply again you will do the same thing, which is like fit. You have to simply fit it. कुछ प्रिडिक्शन नहीं करना है यहाँ पे, बस हमें फिट करके देखना है कि मॉडल ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. तो अगर मैं उसका समरी देखूंगा तो अगेन ये मुझे स्टैट्स मॉडल यूज करना पड़ेगा. अगर मुझे पी वैल्यूज से कुछ इंफॉर्मेशन डालनी है तो अल्टीमेटली आप देखोगे वही सारे कॉलम्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है, और ये उनके कोफिशिएंट वैल्यूज आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है. दीज आर द कोफिशिएंट्स, बट द इम्पोर्टेंट इज पीछे एक टी टेस्ट प्रोसेस होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, टी टेस्ट होता है जिसमें टी वैल्यू निकलती है. बट टी वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देते, हम पी वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू को. तो यहाँ हम अगर देखें तो 0.05 से नीचे की जितनी भी वैल्यू है, 0.05 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज है वो सिग्निफिकेंट मानी जाती हैं. तो ये सारे मेरे पास सिग्निफिकेंट है, एक्सेप्ट दिस 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 दीज आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट. तो यहाँ लेकिन अब मैं एक बार में सारे तो ड्रॉप नहीं करूंगा. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट इन अ फेज वाइज अप्रोच वेयर आई कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग दीज and then see whether my accuracy improves, right? What happens to the model? मेरा R square value बढ़ गया. So this is like one thing.
which I can do. So remember, you have to use the OLS method अगर आपको p value वाली approach R प्रोग्रामिंग जो आप करते थे उसमें जाना है तो। दूसरी बात, R स्क्वायर तो मेरे पास यहाँ पर भी वैसे ही सिमिलर आ रहा है जो ऊपर आया था, ठीक है, 0.75, बट यहाँ एक एडजस्टेड R स्क्वायर की भी बात हो रही है। और हमने पिछली बार बात की थी कि R स्क्वायर और एडजस्टेड R स्क्वायर में क्या फर्क होता है, कि भाई देखो R स्क्वायर नॉर्मली ज्यादा अच्छा दिखता है, एडजस्टेड R स्क्वायर से ज्यादा अच्छा दिखता है, तो हमें लगता है कि भाई मॉडल इज गुड। होता है R स्क्वायर की वैल्यू क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे कारण ये है कि भाई जब भी, अच्छा इसको ऐसा रूल ऑफ थंब मानो कि जब भी आपको R स्क्वायर और एडजस्टेड R स्क्वायर में डिफरेंस दिख रहा है और एडजस्टेड R स्क्वायर लेस, देन आप समझ जाओ कि आपके मॉडल के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर कैसे काम करता है कि जैसे जैसे आप फीचर डालते रहोगे, मतलब एक तरह से एक इंग्रेडिएंट है, आप ज्यादा मतलब एक रेसिपी में इंग्रेडिएंट डालते रहोगे तो R स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके खाने को खराब कर देंगे। तो एडजस्टेड R स्क्वायर क्या करता है, वो उसे पता है कि कौन से इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपके खाने को खराब कर रहे हैं, तो वो उन चीजों को पैनलाइज करता है और पेनल्टी मार देता है उन चीजों पे और स्कोर कम कर देता है। तो दैट मीन्स एडजस्टेड R स्क्वायर ये नहीं कहता है कि ब्लाइंडली मैं अपनी फीचर बढ़ते रहेंगे तो एक्यूरेसी बढ़ाता रहूंगा, मैं ये भी देखूंगा साथ में कि कौन सा फीचर है जो रियली इंपॉर्टेंट है, राइट। अदरवाइज ज्यादा फीचर डालने से आपका मॉडल ओवरफिट भी होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ज्यादा डालने से डेफिनेटली एक्यूरेसी में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ओवरफिट होगा मॉडल, कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, ट्रेनिंग और प्रेडिक्शन में उतना ही टाइम लगेगा। तो आई शुड be very cautious when I am adding additional features, that whether they are really important or not. So adjusted R square penalizes the additional features if they are of no use. So that's why you can see that adjusted R square is bit less. That means there are some features which unnecessarily contributing to a higher R square. However, really में उनकी importance थी ही नहीं, तो 0.74 की एक्यूरेसी थी, 0.75 की नहीं थी। ओके, तो ये अब हम कैसे सही कर सकते हैं और अपना एडजस्टेड R स्क्वायर या R स्क्वायर को कैसे और घटाना है, क्योंकि ये रियल इंडिकेटर नहीं है 75, तो मुझे इसमें से कुछ फीचर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे अब और फिर से मॉडल को रन करना होगा। आई एम लीविंग दैट टू यू, व्हाट यू डू, ड्रॉप फ्यू फीचर्स, ओके, लाइक ये रीजन वाले आप सारे उड़ा सकते हो, एंड देन अगेन check the R square and adjusted R square. That is another important criteria to look here is these two things. One second. Yeah, AIC and BIC. So before I tell you about the details of AIC, BIC, let me share this code. आप एक बार इसको रन कर लो। तो हमने ये देख लिया कि मॉडल ओवरफिट अंडरफिट है या नहीं, प्लस उसकी RMSE वैल्यूज क्या है, बट देन आपको R वाली कॉन्सेप्ट जाना है R प्रोग्रामिंग में, तो आपको स्टैट्स मॉडल यूज करना पड़ेगा। स्टैट्स मॉडल अल्टीमेटली इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स प्लस मशीन लर्निंग मॉडल्स, एंड देन यू कैन गेट द R स्क्वायर एंड एडजस्टेड R स्क्वायर, AIC BIC, बस ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और की वैल्यूज। ओके, सो अच्छा, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको एज कंपेयर टू जो sklearn से निकले थे, बट आप इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए p वैल्यू है। हम OLS पे गए क्यों हैं, p वैल्यू देखने के लिए गए हैं। कोफिशिएंट्स की वैल्यू में माइनर डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, बट you just look at this, drop few features and then rerun the model. Okay, but before we do that, please run this OLS. तो अभी मैं क्यों नहीं कॉलम्स डिलीट कर रहा हूं, मतलब आई डोंट जस्ट वांट टू पुट मोर टाइम इनटू दैट। आई यूज
अदर एडवांस अप्रोच ऑफ रिज एंड लैसो रिग्रेशंस, जो ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं, बट आप लोगों को मैनुअली करना है, पहले कुछ कॉलम ड्रॉप करके फिर से रन करना, उसकी और फिटिंग चेक करना। So guys, just ping me if you are done with this OLS. मतलब एक बार उसकी p वैल्यूज वगैरह, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, AIC BIC, ये 4 चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर में क्या फर्क है, AIC BIC का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, उसका रेलेवेंस भी पूछा जाता है, ये लॉग लाइक्लीहुड भी पूछ लेते हैं कई बार, वो मैं अभी बता दूंगा आपको, वो इसी के फॉर्मूले में यूज होगा, AIC BIC के फॉर्मूले में यूज होगा। हाँ प्रेम, यहाँ पर OLS में रिवर्स एंट्री जाती है, मतलब वो जिसने फंक्शन बनाया है उसने इस तरह से बनाया है, मतलब ये एक तरह से आर वाला सिंटेक्स यूज किया ना उसने। आर में कैसे लिखते हैं, टिल्डे देन x1 + x2 + x3 ना, क्योंकि ये पूरा आर वाले कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, तो आर में आप पहले y पास करते हैं तो इसलिए इन्होंने ऐसा बनाया। बट एसक्यूएल में हमेशा आपको वो उल्टा दिखेगा, विच इज लाइक x एंड y, यहाँ पर y एंड x है। ये कई बार ऑड लगता है, मतलब बट यू कांट डू एनीथिंग विद दिस, मतलब दिस इज द वे इट इज रिटन। Okay, so now guys, I'm moving to these things, AIC and BIC. But before I go into that, like anyone know what is AIC and what is BIC? दोनों में difference क्या है, ये होते क्या हैं? Are you aware about the formula for AIC BIC? Just ping me yes or no. What do you mean by AIC BIC? Okay, no problem. Okay, so ये जो भी अभी हम चार्ट देख रहे हैं, इसमें AIC BIC क्या होता है? देखो, कभी भी आप कोई मॉडल जब बिल्ड करते हो तो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जिनको मार्केट में यूज किया जाता है, और AIC BIC आर टू वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, Akaki information criteria and Bayesian information criteria. Let me show you this, 1 second. So when we have multiple models and we have to select that out of this model, which model is better. So this model selection we have to do, right, out of lot of candidate models, right? So we have multiple approaches, but these two are the best one, AIC BIC, which is Akaki information criteria and Bayesian information criteria. So let me show you the formula. Yeah, so if you see this, so Akaki information criteria as given by this person Akaki, ये हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर मॉडल जो है हाउ, मतलब दो पैरामीटर पे इवैल्यूएशन करते हैं ये AIC BIC इंटरनली, दो चीजें चेक करते हैं, एक तो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस और एक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि मॉडल कितना एक्यूरेट है, मतलब परफॉर्मेंस से मतलब है मॉडल कितना एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी या आर स्क्वायर वैल्यू कितनी अच्छी है। दूसरा, वो मॉडल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल एज इन कि आप ज्यादा फीचर्स मॉडल में डाल दोगे वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कम फीचर वाला मॉडल लेस कॉम्प्लिकेट होता है। आप सपोर्ट वेक्टर मशीन की बात करोगे तो वो इंटरनली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स पे बेस्ड है एज कंपेयर टू अ लीनियर रिग्रेशन। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच से वेदर अ मॉडल इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स, लाइक लीनियर मॉडल्स आर सिंपल बट न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये दो चीजें देखता है कि ये मॉडल कितना एक्यूरेट है और कितना कॉम्प्लेक्स है, उस दोनों को यूज करके वो आपको एक स्कोर देता है, और ये स्कोर मिनिमम होना चाहिए, minimum the value of this score, the better the model is. And why that, we will see the formula.
बट रिमेंबर AIC BIC वैल्यू शुड बी मिनिमम। दो मॉडल में जिसकी AIC कम है वो बेटर है, या जिसकी BIC कम है वो बेटर है। ठीक है, कम होने का मतलब ये है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस और कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज बेटर। ओके, so we have to look into this formula. If you see here this formula, minus of 2n into LL which is log likelihood, log likelihood जो मैं आपको यहाँ बता रहा था अभी कि ये log likelihood, right, कि this value will be used inside these two formulas, so इसलिए वो log likelihood LL, so log likelihood plus twice of k by n। अब ये k और n क्या है? so simple, सो सिंपल, आपका जो ट्रेनिंग डेटा होता है, यहाँ हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेनिंग डेटा में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, हम इन दो चीजों पे ही खेलते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं ट्रेनिंग डेटा में, और नंबर ऑफ फीचर्स, नॉट द टारगेट वेरिएबल, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं के। तो अगर मुझे ये पता है along with the log likelihood value, I can calculate this. Okay, similarly Bayesian information criteria is another method which is using the Bayesian statistics, and again इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए बट इसका फॉर्मूला अलग है। तो अगेन these formulas are asked in the interviews, I am just pinging you the formula. Now what happens is कि AIC BIC कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्मूला SQL में अवेलेबल नहीं है, तो हमें खुद के फंक्शंस अब बनाने पड़ेंगे इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। सो लेट्स सी दिस। जैसे OLS तो आपको AIC BIC दे देता है, राइट, बट अगर आपको SQL यूज करना है तो वहां AIC BIC नहीं होता, उसे निकालना पड़ता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको पिंग किए हैं, और उस फॉर्मूले का मतलब हमें पता है, तो हम एक फंक्शन बना सकते हैं। कैसे? सी दिस। सो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम creating a AIC function, calculate AIC function that takes three things: number of records in the training data, number of features in the training data, and the MSE, mean squared error। मीन स्क्वायर्ड एरर की क्या जरूरत है? जो LL, जो लॉग लाइक्लीहुड वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट लॉग ऑफ MSE। सो लॉग लाइक्लीहुड इज नथिंग बट अ लॉग फंक्शन ओवर योर error, the error value. So here if you see, one second, I have simply calculated this, matlab I have created this, but similarly I have created this another formula. तो यहां पर मैंने AIC का फॉर्मूला क्या बनाया है, अगर आप देखोगे जो मैंने आपको पिंग किया है, so here we have that formula. Similarly for BIC we have this formula, which is n log likelihood of number of params and number of records. Now what you need to do is simply, अब इसमें हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है? तो ट्रेनिंग डेटा में मेरे पास नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, और MSE कितना है। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट शो यू दिस। ओके, सो हम ट्रेन डेटा के लिए तो नहीं निकाल पाएंगे, हम इसे टेस्ट डेटा के लिए निकाल रहे हैं। मैं आपको टेस्ट डेटा के लिए बता रहा हूँ। टेस्ट डेटा के लिए हमने MSE निकाला था, राइट। तो लेट मी रिकैलकुलेट, ये तो RMSE निकाला था, सो आई एम कैलकुलेट MSE। MSE इज व्हाट, ये MSE और उसमें Y टेस्ट और Y प्रेडिक्ट, मैंने पहले MSE निकाल लिया। अदर देन दैट व्हाट आई नीड इज X टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ कॉलम्स, उसकी शेप क्या थी। So X test 268 are the number of records and 11 is the number of columns.
So what I have to put there is 268 and 11, and this value, which is MSC, is this value. So here this is my AIC value that I calculate out of it. तो उसने internally मेरा MSC यूज करके log likelihood निकाल लिया and then it printed this value. So AIC BIC आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. कई बार आपसे इंटरव्यू में फॉर्मूले के साथ ये पूछ लेता है कि उसको पाइथन में कैन यू राइट इट, तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस आउट. बट मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए AIC BIC की. लेसर द वैल्यू बेटर द मॉडल इज. ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं हम टेस्ट डेटा पे निकाल रहे हैं. ओके, सो विल टेक द ब्रेक. बट ये जो है हम टेस्ट डेटा पे निकाल रहे हैं गाइस. ट्रेन डेटा पे अगर AIC BIC देखना है तो ये है. AIC और BIC निकला है, ये ट्रेन डेटा पे निकला हुआ है. दिस इज ऑन द ट्रेन डेटा. और जो हम निकाल रहे हैं वो टेस्ट डेटा पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रेन डेटा पे हम MSC नहीं निकाल सकते. MSC के लिए हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज चाहिए, तो इसलिए हम टेस्ट डेटा पे अपनी ये वैल्यूज निकाल रहे हैं. तो विल टेक अ ब्रेक. व्हाट्स द टाइम नाउ? So we'll meet at after 11 minutes at 6:20. Hi, is there anybody there?
giving me yes? Okay. Okay, so till now we have talked about the formula for AIC BIC. So ultimately AIC BIC value जिस मॉडल की कम है वो बेटर है. Formula we have seen. AIC BIC का पर्पस क्या है? They simply look at two things. One is the model performance and second is the model complexity. Using the value of number of records, number of features and log likelihood, they calculate a AIC BIC value which is used. तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं. Okay, this is how we calculate the AIC BIC values. Here this AIC BIC value are for the train data और जो नीचे हमने निकाली है वो टेस्ट डेटा के लिए निकाली है. Okay, so now this was linear regression model, but we know that linear regression model has certain problems that we need to solve. The problems that are solved are by the ridge regression and the lasso regression. Okay, but what is the problem? So linear regression में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये एक sort of unbiased model है. Okay, one second. Okay, there are a lot of other good links, you can look at this. Okay, so linear regression में what we have seen is, पहली बात कि जब भी हम linear regression model implement कर रहे हैं, जितने भी हम features उसमें pass कर रहे हैं, वो एक तरह से सारे features को use कर रहे हैं model build करने के लिए, और बाद में हमें उन features को p value के basis पे identify करके खुद से drop करना पड़ता है. मतलब लीनियर रिग्रेशन को आपने जितने भी फीचर्स दिए वो सबको यूज करेगा, मॉडल बिल्ड करेगा. इवन कोई फीचर ऐसा है जो बहुत ही लीस्ट सिग्निफिकेंट है वो उसको भी यूज कर लेगा और आपको मॉडल बिल्ड करके दे देगा. बट वी वांट एडवांस लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो ये फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जब उन्हीं को रखे, बाकियों को खुद से ही ड्रॉ कर दे. एक तरह का ऑटोमेटेड फीचर सिलेक्शन प्रोसेस भी वो खुद ही से कर दे हमारे लिए. ओके, दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड इज दैट दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल it becomes more and more complex as you add more and more features. तो हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, जो हमारा AIC BIC का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी है कि मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. तो कैसे हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हमारे रिज और लेसो रिग्रेशन में वी कैन डू दैट. सो आई हैव क्रिएटेड अ कॉपी ऑफ दिस एंटायर कोड हियर. So let's just run this from startings. So now linear regression के ही दो advanced models हैं हमारे पास, which is ridge regression and lasso regression. They solve certain problems like complex model नहीं होने देते वो. Complex कब होता है एक मॉडल, जब उसमें बहुत ज्यादा unnecessary features आप ऐड करते चले जाते हो, जबकि मॉडल उन फीचर्स को खुद से हटा ही नहीं पाता. तो उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे यहाँ. ओके, सो बाकी सारी प्रोसेस सेम है, बस लीनियर रिग्रेशन की जगह यहाँ हम क्या करेंगे, वी विल यूज रिज. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द थिंग दैट वी आर यूजिंग द एडवांस लीनियर रिग्रेशन विच इज रिज रिग्रेशन.
ओके, सो अभी मैंने क्या किया कि नॉर्मली इंटीग्रेशन हम अवॉइड करते हैं, वी यूज रिज रिग्रेशन। सो मैंने सो रिज रिग्रेशन मैंने यूज किया, और रिज रिग्रेशन जब यूज किया तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है एक पैरामीटर अल्फा, the most important parameter which is alpha, which we will be using. Random state क्योंकि इसके अंदर है तो definitely you should use it. Okay, I will tell you what this alpha means, but this process that we are doing is known as the process of regularization. Okay, so now ridge regression we are using, and ridge regression is nothing but it is known as regularization. So people can ask you what do you mean by regularization, which I will tell you, but there are multiple types of regularization, L2 and L1. So currently we are talking about L2 regularization, remember. So this is linear model which is regularized. So this is a regularized linear model, remember. Regularized linear model which is of type L2, which is known as ridge, and another one is L1, which is known as lasso. So there is L2 regularization and L1 regularization, ridge regression and lasso regression. What happens in that we will see. Okay, so ridge regression, when we implement, we see that alpha, there is a parameter which is a regression parameter. This regularization parameter, हम कितना उसको regularize कर रहे हैं, we will change this values, but let's go ahead first and see what happens with the default value. X train is not defined. Where is X train? This haven't ran. Okay, 1 second. Okay, it failed here. So it, okay, the duplicate again. It just failed at one place, so I'm just running it again. Okay, let me do this. Get dummies. Okay, okay, it is perfect. Then I will drop these values. Okay, now I will run this. Now I'll run this. My model is there. Okay, okay. So model fit हो चुका है. अब model अगर fit हो गया है तो definitely मॉडल अगर फिट हो गया है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो उसके इंटरसेप्ट्स और कोफिशिएंट्स हमें मिल गए हैं, बट इम्पोर्टेंट इज लेट्स सी द स्कोर. Okay, so now what we did was we implemented the regularization. So first of all, what do you mean by that? So होता क्या है, देखो जब भी आप एक लीनियर मॉडल इंप्लीमेंट करते हो, लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करते हो, तो हर फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक कोफिशिएंट वैल्यू मिलती है. ओके, लेकिन वो कोफिशिएंट वैल्यूज बहुत ही ज्यादा होती हैं, मतलब दे कैन बी ड्रास्टिकली टू मच. सो रेगुलराइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट सेज दैट कि हम इन कोफिशिएंट वैल्यूज को जितना हो सके उतना जीरो के नियरेस्ट लेकर जाएंगे, उन्हें रेगुलराइज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ रेगुलराइजेशन और रेगुलराइज लीनियर मॉडल डू व्हाट, कि जितने भी आपके फीचर्स हैं उन सबके कोफिशिएंट्स की वैल्यू नियर जीरो करते हैं. एग्जैक्टली जीरो नहीं करता, नियर टू जीरो करता है. लेसो रिग्रेशन उसको जीरो भी करता है, और अगर किसी कोफिशिएंट को आपने जीरो कर दिया तो आप समझ सकते हो दैट मीन्स कि वो कोफिशिएंट ही वो फीचर ही आपका फॉर्मूले में से हट जाएगा. तो दैट मीन्स रिज और लेसो में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि अगर आप ये कोफिशिएंट वैल्यूज देखोगे, यहाँ जो कोफिशिएंट वैल्यूज मिली हैं, पहली बात इन कोफिशिएंट वैल्यूज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा रिज रिग्रेशन. लेसो भी उनको मिनिमाइज करेगा, नियर टू जीरो करने की कोशिश करेगा. रिज रिग्रेशन में लेकिन जीरो नहीं होगी कोई भी वैल्यू कभी भी, चाहे वो फीचर कितना भी लेस इंपॉर्टेंट हो. बट लेसो में यू कैन सी सम जीरो वैल्यूज, दैट मीन्स कि वो उसने फीचर ड्रॉप कर दिया है. आपके
एंड टू एंड फॉर्मूले में से, और अगर वो फीचर ड्रॉप कर दिया है दैट मीन्स कि मॉडल को उसने लेस कॉम्प्लेक्स कर दिया. लेस कॉम्प्लेक्स मीन्स लेस फीचर्स, मोर फीचर मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स. लेकिन यहाँ भी आप देखो तो यहाँ आपको ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ओके, द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑल्सो द डेटा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. देयर आर टू थिंग्स. ये जो वैल्यू आपको कोफिशिएंट्स की दिख रही है दे आर समवट सिमिलर टू OLS मॉडल, but it depends on the value of alpha. I'll tell you how this will impact these values, but before that, so before we do anything, आप एक और मॉडल बना लो, मे बी से रिग्रेजर _r, so that when we do the changes we will understand these things. So what we are doing, we are implementing a regularized linear model, L2 regularization, which is known as ridge. Similarly, we will do the lasso. हेलो सर. हेलो. Yes, go ahead. हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब इनकी क्लियर कट डेफिनेशन बस यही है रिज और लासो की कि ये नियर टू जीरो करते हैं, और मतलब रिज जीरो करता है, लासो जीरो करता है और रिज नियर टू जीरो करता है कोफिशिएंट्स वैल्यू, और इसमें नहीं, अल्फा ऐसा का. कुछ नहीं, हाँ जी. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब सी दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. डेफिनेशन देखोगे तो इज अ वेरी डिटेल्ड डेफिनेशन, जहां आप रेगुलराइज मॉडल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है यू विल गेट टू नो फर्स्ट कि रेगुलराइज मॉडल क्या होते हैं. फिर ये L2 और L1 होने के पीछे इनका फॉर्मूला है प्रॉपर. इफ यू सी दिस L2 एंड L1 एंड देन देयर इज इलास्टिक, इनके फॉर्मूले होते हैं प्रॉपर. ओके, तो आपको फिर वो फॉर्मूले में जाना पड़ेगा. लेट मी शो यू. अभी आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट. सी वन सेकंड. मतलब अभी बेसिक नॉलेज के लिए कितना मतलब पता होना चाहिए रिज और लासो? हाँ, बता रहा हूँ. हमेशा ये ओपन कर लो पहले एक बार. See, this formula is the most important part. तो मतलब आपको ये फॉर्मूले पते होने चाहिए. If you know this formula, it is like there is a formula or a function whose objective is to minimize. So this is a function, okay? There is a function and then there is an optimization problem which says that identify that value of alpha which you minimum value of this function. ओके, सो हमें अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है
जो मिनिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की दे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के साथ इसको ट्राई करना होता है. वी हैव टू ट्राई डिफरेंट वैल्यूज. So you have to go through the detailed definition to understand this formula. Okay, so you will just search what is L2 regularization. You will get about it the entire formula, this formula. Similarly for lasso, there is a different formula and elastic also, and these are known as penalties. Penalties. If you see this is the thing, penalties. You can see this. Yes. So these are penalties. I'll explain you slowly. मतलब एकदम से पूरा नहीं. Just briefly. So what penalties and all. Okay. So see what happens is normally जब भी आपका कोई एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल में भी जब आप ज्यादा फीचर्स ऐड करते चले जाते हो तो ओवरफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. वो मॉडल ओवरफिट होने लगता है. मतलब आपके ट्रेनिंग डेटा पे तो उसकी बहुत अच्छी प्रिडिक्शंस आती हैं, लेकिन रियल डेटा पे गलत आती हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिट केम द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलराइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलराइजेशन सेज कि भैया ओवरफिट होता है. ओवरफिट इसलिए होता है कि जैसे जैसे आप ज्यादा फीचर डालते हो मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है. और एक दूसरा कारण ये भी है कि आपके जो कोफिशिएंट्स हैं हर एक फीचर के, उनके मैग्नीट्यूड की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है. तो रेगुलराइजेशन ये कहता है द वेरी कोर कॉन्सेप्ट कि हम कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे, मतलब नियर टू जीरो रखेंगे. सो दे डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर ईच कोफिशिएंट. एंड हाउ दे डू दैट इज थ्रू दैट फॉर्मूला जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि एक इंटरनल फॉर्मूला है जो एक तरह का पेनल्टी फॉर्मूला है कि L2 पेनल्टी लगा रहे हो या L1 पेनल्टी लगा रहे हो. पेनल्टी एक तरह से क्या है, आप समझो कि पेनल्टी का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा फीचर अगर ऐड कर दिया मॉडल में जो लेस सिग्निफिकेंट था तो आपको पेनल्टी लगेगी. पेनल्टी का मतलब है आपके मॉडल की एक्यूरेसी डाउन कर दी जाएगी. मतलब दिस इज नॉट अ easy concept at the very first day if you listen to it, but I am telling you कि पेनल्टी का मतलब ये होता है कि अगर उसे ऐसे फीचर्स ज्यादा मिल रहे हैं सिस्टम में जो अननेसेसरली ऐड किए गए थे, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा. अब आपके ऊपर कैसे पेनल्टी लगाएगा कि आपकी जो MSC वैल्यू है, जो एरर वैल्यू है, उसको बढ़ा देगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम. प्रॉब्लम कहां है कि देर आर अननेसेसरी फीचर्स, सो आई नीड टू ड्रॉप इट. सो लैसो रिग्रेशन बोलता है कि डोंट वरी, ये काम भी मैं ही कर दूंगा आपके लिए. लेकिन रिज रिग्रेशन ये नहीं करता, क्योंकि जब आपको पता लग रहा है, देखो रिज रिग्रेशन क्या कर रहा है, उसे पता लग रहा है कि ये फीचर हैं जो गलत हैं, जिनकी वजह से पेनल्टी लगाई जा रही है, L2 पेनल्टी, तो क्यों ना उन फीचर्स को ड्रॉप ही कर दिया जाए. तो लैसो रिग्रेशन जब उसका एडवांस वर्जन है, वो कहता है कि ओके, I take this responsibility that if I see there are parameters or features which are not important, I will drop them. But how will you drop them? I will make their coefficients as 0. If you make the beta value as 0, that variable is removed from the calculation. So the ultimate purpose of these regularizations, you are regularizing something. What are you regularizing? You are regularizing the coefficient values. Okay, so you are regularizing the coefficient values for each feature and bringing those values near 0, but not making them in L2. Okay, but in L1 you make them 0 if you see that these features are not important. But how all these things happen behind is a detailed formula, the optimization formula, जैसा मैंने अभी आपको एक दिखाया. Let me show you one more. Okay, ये तीन अल्टीमेटली रेगुलराइजेशन फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये मॉडल्स हैं. इन इंटरव्यू दे नॉर्मली आस्क
So you have ridge regularization, lasso regularization, and elastic net. Elastic net is the benefit of both ridge and lasso are in elastic. Okay. But internally their formulas are different. देखो अल्फा सब में है, जो आपका रेगुलराइजेशन पैरामीटर है सब में है। अब आप देखोगे ये फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया है। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला है आपका, जो ऑप्टिमाइज, देखो किसी भी मशीन लर्निंग में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब दोज हु नो मैथ्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज वन जिसकी वैल्यू या तो हमें मिनिमाइज करनी है या मैक्सिमाइज करनी है इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, ग्रेडियंट डिसेंट एक प्रोसेस होता है, लेकिन किस चलता है, कॉस्ट फंक्शन पे। आई होप few of you remember, right? There is a cost function and we have to minimize the cost function in linear regression. इसलिए बार बार कहता हूं those mathematics, right? So linear regression में there is a cost function and we have to minimize it, and when we say minimize we are doing that gradient descent. वो gradient descent की पूरी process जो है, जो हम बात करते हैं कि भाई ये मेरा एक कर्व है और ultimately I am reaching the global minima, so I am minimizing a particular function so as to reach the minimum value of that cost function. So that is my objective function there. Okay. तो लीनियर रिग्रेशन में तो ये होता है, लेकिन जब रिज या लेसो आ गए वो एक रेगुलराइजेशन वर्जन है लीनियर रिग्रेशन का। रेगुलराइजेशन मतलब कोफिशिएंट्स की जो वैल्यू है उनको नियर टू जीरो करना, ये रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया है जिसमें कोई एक फीचर ज्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाए। दे डोंट वांट दैट वन फीचर इज मोर डोमिनेटिंग देन अदर फीचर्स। तो एक तरह से जैसे स्केलिंग करते हो आप, स्केलिंग कर रहा है वो, लेकिन पीछे एक ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है जो पूरा किस पे डिपेंड है, एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर अल्फा पे। जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी आपको सीधा सीधा इंपैक्ट दिखेगा अपने आउटपुट्स में। इसकी वैल्यू का क्या इंपैक्ट है दैट वी विल सी, बट अभी आप फॉर्मूले में मत कंफ्यूज हो, सिर्फ ये याद रखो देयर इज अ फॉर्मूला which is a optimization objective function. There is an objective function or a cost function. You have to optimize it. To optimize it, you have to play with the value of alpha. The better the value of alpha, the better the results. But how to get that, I'll tell you. See here, if you see the lasso में there is another concept of L1 ratio which is 1, but there is no L2 penalty. There is no L2 penalty. L2 penalty मतलब क्या है, L2 regularization. There is no L2 penalty, L2 regularization in lasso. Lasso is L1. Okay, let me tell you the last formula. बट मैं वही कह रहा हूं कि फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। सी इलास्टिक नेट में भी आपके पास अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 1 है रेगुलराइजेशन पैरामीटर, बट यू सी दिस फॉर्मूला। अब यहाँ जो फॉर्मूला है यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है L1 रेशियो। इसका मतलब है समझना है आपको, तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला भेजूंगा, ये वाले फॉर्मूले पे फोकस मत करो। आई हैव अ सिंपल फॉर्मूला, आई विल शेयर विद यू, उससे इजीली समझ आ जाएगा। बट अभी सिर्फ ये फोकस करो कि अल्फा इज देयर एवरीवेयर, बट व्हाट इज दिस L1 रेशियो। L1 रेशियो ये मैंने आपको बताया इलास्टिक नेट में दोनों चीजें होती हैं, रिज भी होता है, लेसो भी होता है। इलास्टिक नेट में आपका रिज और लेसो दोनों होता है, मतलब L1 L2 दोनों का, लेकिन अब आपको L1 ज्यादा यूज करना है इसमें या L2 ज्यादा यूज करना है, समझ रहे हो आप। जब इलास्टिक नेट में दो चीज मिक्स कर रहे हो, रिज भी और लेसो भी, तो क्या रिज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या लेसो को, वो कैसे पता लगती है, वो इस वैल्यू से पता लगती है, L1 रेशो। L1 रेशो की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी मतलब L1 पेनल्टी, लेसो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर L1 रेशो 1 है
अगर L1 रेशो 1 है, दैट मीन्स lasso is there but ridge is not there. If L1 ratio is 0, if ये इंटरव्यू में पूछते हैं ओके कि इलास्टिक नेट के फॉर्मूले में L1 रेशो को कैसे एक्सप्लेन करोगे. अगर L1 की वैल्यू